Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Waheed, and in this video we are going to study the drugs which are obtained from the animal source. So in the previous lecture we have discussed about the two drugs that are obtained from the animal. First is the honey and second is the musk. Now the third drug which obtained from the animal is gelatin. So gelatin is has two synonyms which we can call it. So the first synonym is gelatinum, gelatinum, and the second is gel form, jelly form. And the biological source is that it is obtaining from the bone, from the skin, and from the tendons of what? Of sheep and cattle. Now we will discuss the family of it, that what are the families of it. So the family of it is bovine, bovida. Sorry, bovine. This is bovida. Okay. The next thing is that we will discuss how to prepare it or how to collect it. So the collection of it is very similar, very simple. That you first of all make the raw material. And what is the raw material? The raw material is our bone, skin, and tendons of sheep and cattle. You will get that, and after that, first the process which you perform on that raw material is liming process. Then after that, I explained that what is the liming process. Then after that, you will fatting it. Then you will cause this extraction. Then you will undergo it from a process which is called as setting. After that, you will dry it, and you will then at last you will bleach it, which process is called bleaching. So now let's explain all of these processes. So first is the liming process. So in the liming process, you will soak that material into a liquid, into a solution. This solution is of CaOH twice, calcium hydroxide. Okay, and you will soak that material for about 15 to 16 minutes. Okay, or you can soak it for 15 to 14 days. Okay, then after that, due to this process, what will happen? The fleshy material which attached to the bone will dissolve, and the chondroprotein, what? Chondroprotein. So actually it is a glycoprotein which is present in our what? In the cartilage. Okay, so it will removed, and after that you will wash it, and then you will undergo a process which is called defatting. So in the defatting you will ground it. You will what? ग्राउंड इट के मतलब आप बोन को पीसेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एक सॉल्वेंट के साथ, जिस सॉल्वेंट को हम कहते हैं बेंजीन. ठीक है, बेंजीन के साथ उसको आप ट्रीट करेंगे और बोन्स के एक्सट्रैक्ट को रिमूव करेंगे एक सोल्यूशन से जिसको हम कहते हैं HCl. ठीक है, डी फैटिंग में क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसको ग्राउंड करेंगे. ग्राउंड करने के बाद आप उसके अंदर एक सॉल्वेंट डालेंगे जो कि है बेंजीन, और बेंजीन का काम एक सॉल्वेंट की तरह है. फिर उसके बाद आप उस बोन के एक्सट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे. देन आफ्टर डैट आप अपने एक्सट्रैक्ट करना है. एक्सट्रैक्शन के लिए जो मेथड आप यूज़ करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है? वाटर के साथ उसको बॉईल करना है. ठीक है, वाटर के साथ आप उसको बॉईल करेंगे और आपको जेलेटिन मिल जाएगा. और अबाउट ये तकरीबन जो जेलेटिन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 45%
इसकी कंसंट्रेशन होगी। देन आपने सेटिंग के प्रोसेस में जाना है, और सेटिंग के प्रोसेस में आप बड़ी सी ट्रे लेंगे, और वो जो आपके पास लिक्विड सा आया था 45% जेलेटिन का, उसको आप एक बड़ी सी ट्रे में रखेंगे और उसको सेटल होने देंगे, उसको ड्राई करेंगे। अब आपने उसे सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना है इस सेटिंग के प्रोसेस में। देन आप उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए आपने एक टेम्परेचर रखना है। डिफरेंट किस्म के ड्राइंग चैम्बर्स होंगे, अबाउट 30 से 60 डिग्री तक का आप टेम्परेचर रखेंगे, और हर चैम्बर के अंदर 10 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। लेट्स सपोज कि मतलब फर्स्ट चैम्बर में 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है, तो नेक्स्ट चैम्बर में 40 डिग्री होगा, फिर 50 डिग्री होगा, ठीक है ना। सो 50 डिग्री होगा, एंड देन एट द लास्ट फिर 60 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर हो जाएगा। सो ड्राइंग के प्रोसेस में इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर 10 डिग्री के लिहाज से इंक्रीज़ करते जाएंगे। और लास्ट जो प्रोसेस है इसका वो है ब्लीचिंग। सो यहाँ पर आपने उसको ब्लीच करना है ताकि उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए। उसके लिए आप सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एक ब्लीचिंग पाउडर की तरह जो है ना वो काम करता है। मार्कर थोड़ा सा हमारा फीका हो रहा है। सो ठीक है, सो आप इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, और जो है ना उसके बाद आपको आपके रिज़ल्ट जो आपको जो जिलेटिन जिस कलर में चाहिए आपको वो जिलेटिन मिल जाएगा। सो ये था प्रोसेस इसको कलेक्ट करने का। नेक्स्ट आप सब लोगों को पता है कि बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं हम, फिर फैमिली देखते हैं, फिर उसकी कलेक्शन देखते हैं। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, इसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसकी यही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इसकी कलर की हम लोग बात करें ना, कलर, तो आपने कलर मोस्टली तो लिखना है कि इसका कोई कलर नहीं है। क्या है इसका? कोई कलर नहीं है, बट हम कह देते हैं कि इसका स्लाइट येलो कलर है, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इसका येलो कलर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि ज़ाहिर बात है इसका ऑर्डर। सो ऑर्डर का भी आपने याद रखना है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है। टेस्ट में भी आपने इसका याद रखना है कि कोई इसका टेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो सोलेबिलिटी में आपने याद रखना है कि ये जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर ये सोलेबल नहीं होगा, हॉट वाटर के अंदर फिर भी ये सोलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं इसके केमिकल्स के ऊपर कि कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके केमिकल्स याद करना बहुत ईजी है क्योंकि जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। सो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लूटीन कहते हैं। ये ग्लूटीन एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी वजह से ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। सो जेलेटिन एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, और वो ग्लूटीन की वजह से एक्ट करता है क्योंकि ग्लूटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लाइक ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर प्रेजेंट है, एलानिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, और इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड, एसिड, ठीक है। सो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन एट द लास्ट हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि ये किन किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो हम यूजेस को यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके यूजेस आपके पास क्या क्या हैं। सबसे पहला यूज़ तो ये है कि ये ड्रग की डोजेज फॉर्म बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी डिफरेंट किस्म की डोजेज फॉर्म है, जैसे डिफरेंट किस्म के पेस्ट बनाने के लिए, सपोजिटरीज बनाने के लिए, ठीक है। सपोजिटरीज जो होती हैं ये वेजाइनल इंजेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोटिंग एजेंट के तौर पे ये यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या है? कोटिंग एजेंट के तौर पे है। बाइंडिंग एजेंट है ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। डिफरेंट कैप्सूल्स, या अगर हमने बाइंडिंग एजेंट, ये दोनों के लिए, ये कैप्सूल को भी बाइंड करता है और ये टैबलेट्स को भी बाइंड करने में हेल्प करता है। लेकिन टैबलेट्स के अंदर भी पाउडर्स होते हैं, सो उन पाउडर्स को बाइंड करने के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। आपको पता है बिस्किट्स बनाने के लिए इसी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो रबड़ इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है,
तो रबर इंडस्ट्री में रबर बनाने के लिए ये यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये स्किन प्रोटेक्टर भी है। क्या है ये? लास्ट इसका यूज़ आ जाता है स्किन प्रोटेक्टर। सो स्किन प्रोटेक्टर ये कैसे है, अगर हम इसको जिंक के साथ मिलाकर इसका जिंक का कॉम्बो दे दें तो वो स्किन प्रोटेक्टर के तौर पे ऐड करता है। आप इसको कह सकते हैं जिंक जिलेटिन, यानी जिलेटिन के अंदर यह जब आप जिंक डाल देते हैं तो जिंक जिलेटिन बन जाता है और वो इस चीज़ तरह से यूज़ होता है। तो ये था हमारा जिलेटिन का कंपोनेंट। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। सो हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा, हम छोट से रिवीजन कर लेते हैं। आपने भी मेरे साथ साथ रिवाइज करना है कि हमने देखा कि जिलेटिन, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, जिलेटिनियम और जेलीफॉर्म। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोन, स्किन, टेंडन्स जितने भी हैं शीप के और कैटल के, उनसे हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। फैमिली नेम की बात करें तो बोविडाई इसका फैमिली नेम है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें क्या कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी कलेक्शन के मेथड्स थे। सबसे पहले तो हमने एक्सट्रैक्ट करना है अपना रॉ मटेरियल, यानी आप बोन, शीप और कैटल की बोन, स्किन और टेंडन्स लेंगे। उस रॉ मटेरियल को आपने सबसे पहले लाइमिंग का प्रोसेस करना है, उसको सोक करना है 15 टू 16 मिनट्स के लिए, या आप 14 से 15 डेज तक उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सोक करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि उसका जो फ्लैशी मटेरियल होता है जो बोन के ऊपर अटैच होता है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और एक कार्टिलेज के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोप्रोटीन, वो कॉन्ड्रोप्रोटीन हमारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने एनिमल की जो स्किन या बोन होगी उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। देन आप सेकंड प्रोसेस की तरफ आएंगे जिसको हम कहते हैं डी फैटिंग। डी फैटिंग में आप लोगों ने उसके साथ क्या करना है, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डी फैटिंग के अंदर आप लोगों ने उस बोन जो भी होगी उसको आपने ग्राउंड कर लेना है अच्छी तरीके से, और उसको एक सोल्यूशन बेंजीन के एक सोल्यूशन के साथ आपने उसको ट्रीट करना है। और अगर आपने उसका एक्सट्रैक्ट लेना है तो आप HCl के साथ उसको ट्रीट करेंगे। देन सेकंड प्रोसेस था हमारा एक्सट्रैक्शन का। अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसको बॉयल करेंगे वाटर के साथ, और इसके करने के साथ आपको 45% प्योर जिलेटिन मिल जाएगा। देन आपने उसको सेटल करना है, उस 45% जेलेटिन को आप बड़ी सी ट्रे के अंदर उसे सेटल करेंगे ताकि वो लिक्विड से विस्कस सेमी सॉलिड बन जाए। देन आप फिर उसको ड्राई करने के लिए डिफरेंट ड्राइंग चैम्बर्स में भेजेंगे। हर ड्राइंग चैम्बर के अंदर 10 डिग्री इंक्रीज हो रहा होगा और वहाँ का टेम्परेचर 30 से 60 डिग्रीज तक का होगा। देन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि लास्ट जो प्रोसेस हमने उसके साथ किया है ड्राइंग के बाद, कि हम लोगों ने उसको ब्लीच करना था एक ब्लीचिंग एजेंट के साथ, जो कि ब्लीचिंग एजेंट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। तो इस ब्लीचिंग एजेंट का मकसद क्या है, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर दे देता है उसे। देन उसके बाद हमने देखा इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने कहा ये यूजली कलरलेस होता है, बट इसका स्लाइट येलो कलर भी आ सकता है। Then it is odorless, it is tasteless. Then we have discussed about solubility of it. We have discussed that it is insoluble in cold water and it is soluble in hot water. And we have discussed that it is chemicals composition of it that composed of gluten, which is a protein in it, while it has composed of some amino acids like glycine, like alanine, leucine, isoleucine, aspartic acid, glutamic acid, and all of these. Then at the last we have discussed its uses. It is used to prepare paste, various kind of creams, various kind of suppositories, and various kind of binding agent, coating agent, and it is also used in the in the manufacturing of food products like biscuits and various kind of dairy products, and it is also used in the rubber industry in order to produce the rubber, and it also used in as a skin protector when it combines with the zinc. So this was all about the gelatin, which is the third drug which is obtained from the animal. So I hope that you will learn from this lecture, and if you have some type of confusions then you can ask me, I will answer to you. And meet you soon in the next lecture. Take care of yourself, and if you like this video, please like it, subscribe this channel, and also share it with your friends. So meet you soon in the next lecture. Till up, Allah Hafiz.